अवसर के साक्षी बने। मैं सादर निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके करकमलों से जो औद्योगिक संकल्पना आगे विकसित होने वाली है, आपके करकमलों से हम सुचारू करें। वीडियो प्लीज। Everybody please put your hands together. तो देश का ये पहला और सबसे खास सेमीकंडक्टर प्लांट, इसकी खासियत क्या होगी, कैसा दिखने में होगा, बिल्डिंग का डिजाइन क्या है, ये आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में देश का पहला गैलियम नाइट्रेट सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित होगा और उसका भूमि पूजन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी आप देख रहे हैं मंच पर, जो कि आधारशिला इस परियोजना की रख चुके हैं और अब एक जो प्रेजेंटेशन है उसके जरिए दिखाने की कोशिश है कि इसकी रूपरेखा क्या होगी, कितने टेक्नोलॉजीज इसमें होंगे, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, बिल्डिंग का डिजाइन क्या होगा, कितने लोगों को रोजगार इससे मिलेगा, कितनी कमाई एक बार में एक व्यक्ति कर सकेगा। इसके अलावा 5G से लेकर 6G तक में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ये फैक्ट्री भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। करीब 1143 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाला ये अत्याधुनिक संयंत्र चेन्नई की पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से जो है स्थापित किया जा रहा है। कंपनी का लक्ष्य है कि वो 2030 तक हर साल 10 अरब चिप्स का उत्पादन करेगी। ये चिप्स जो हैं वो 5G, 6G, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। क्यों है GaN तकनीक खास, ये भी आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये। गैलियम नाइट्राइड आधारित चिप्स पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स की तुलना में तेज और अधिक ऊर्जा दक्ष होती हैं। ये काफी टिकाऊ होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए आदर्श होती हैं। इससे भारत की सेमीकंडक्टर आयात पर निर्भरता घटेगी और ये देश को वैश्विक तकनीकी महाशक्ति बनने की दिशा में ले जाएगा। तो ये सेमीकंडक्टर प्लांट है जो कि देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट नए रायपुर में खुलने जा रहा है। नया रायपुर से आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। भूमि पूजन के साथ साथ अब संबोधन की बारी। Jain ji, Principal Secretary to the Honorable Chief Minister Sri Subodh Kumar Singh ji, CSIDC Chairman Sri Rajiv Kumar Agarwal ji, distinguished dignitaries, esteemed guests from government and industry, valued members of Polymetal Electronics family, our trusted vendors, customers, stakeholders, shareholders, respected industry leaders, innovators, and aspiring professionals in the semiconductor sector, journalists, ladies and gentlemen. A very warm and heartfelt welcome to all of you on this historic occasion, the foundation stone laying ceremony for Polymetal Limited, second state-of-the-art manufacturing plant here in Nava Raipur, Chhattisgarh. It is a profound honor to address you today in the esteemed presence of our Honorable Chief Minister Sri Vishnudev Sai ji. Sir, your visionary leadership and unwavering commitment to Chhattisgarh's industrial and economic progress have made this moment possible. Your presence here today is a testament to your dedication to fostering innovation and growth, and we are deeply grateful for your invaluable support. Today marks a transformative milestone for Polymetal Electronics Limited and for India's journey towards becoming a global semiconductor powerhouse.
Allow me to briefly introduce Polymatech Electronics. Polymatech, a pioneer in India's semiconductor industry. Since our inception in 2019, building on a manufacturer legacy began in past 2008. We have been at the forefront of bridging the technical gap, strengthening domestic supply chains, and positioning India as a leader in advanced semiconductor packaging and manufacturing. Our global operations reflect this ambition. In Chennai, we lead in optoelectronics packaging, driven by the expertise of Mr. Hidenobu Hitotsu Matsu, a renowned figure in LED chip packaging from Japan. In California, for over 5 decades, we have developed cutting-edge semiconductor testing and failure analysis equipment used by all global semiconductor and automotive companies. In Grenoble, France, we produce high-quality monocrystalline and polycrystalline silicon carbide and sapphire wafers, cementing our role in the global supply chain. And now here in Nava Raipur, Chhattisgarh, we are establishing a telecom device packaging facility, a cornerstone for India's digital future. As 5G and next generation networks expand, this plan will drive self-reliance in producing critical semiconductor module for telecom infrastructure, IoT and satellite communications. Our designs draw experience from esteemed professors of Cardiff University, Wales, UK, reflecting our collaborative global approach. This new facility in Nava Raipur is more than a manufacturing plant. It's a bold step forward towards realizing the Make in India called by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Equipped with cutting-edge technologies, it will enhance our capacity to deliver high-quality 5G and 6G semiconductor components for domestic and global markets. It will also create significant employment opportunities, empowering Chhattisgarh's youth with the skills and fostering innovation to drive socio-economic growth in this region. Why Chhattisgarh? Many people, many journalists have asked me. This is the answer. The answer lies in the state's progressive industrial policies, robust infrastructure, and proactive support from the government. Nava Raipur's emergence as an industrial hub made it the natural choice for strategic expansion. We are excited to contribute to Chhattisgarh's dynamic growth and to partner with the state in its journey to become a global hub for advanced manufacturing. None of this would be possible without the dedication of the officers from the government of Chhattisgarh and Polymatech team, whose passion and expertise have brought us to this juncture. I extend my deepest gratitude to every member of our family, as well as our partners, stakeholders, and the local community for their trust and collaboration. Honorable Chief Minister Sir, your government's focus on creating a business-friendly environment and promoting investment in strategic sectors like electronics is truly commendable. Under your dynamic leadership, Chhattisgarh is poised to shine on the global stage, and we are honored to be your partner in this transformative journey. As we lay the foundation stone today, we are not just building a factory, we are laying the groundwork for the technological advanced future, one where India leads the global electronics value chain. Polymatech is committed to sustainability, innovation and AI-driven manufacturing to ensure we remain at the forefront of this industry. Thank you all for being a part of this momentous day, and this is very auspicious day for us in Tamil Nadu. Uttara Panguni Uttam is a festival in Tamil Nadu. We all believe, as per Brahma Purana, Shiva weds Parvati this day, Sita weds Rama this day, and Devayani weds Kartikeya this day. With your continued support, we are confident that this venture will be a resounding success, propelling both Polymatech and Chhattisgarh to new heights. Vande Bharatam Vishwaguru. माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी,
पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से हम आपके सम्मानित समर्थन की विनम्र अपील करते हैं ताकि हम छत्तीसगढ़ के जवान राज्य में अपनी गतिविधियों का और विस्तार कर सके और हम 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश के साथ एक अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं जो पावर मॉड्यूल फैब्रिकेशन के लिए होगी। ये यूनिट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स, थायरिस्टर्स के उत्पादन पर केंद्रित होगी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होंगे। ये महत्वाकांक्षी विस्तार में केवल भारत को उन्नत सेमीकंडक्टर विनिर्माण में अग्रणी बनाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली युवा इंजीनियरों के लिए 5,000 उच्च कौशल रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। नवाचार को बढ़ावा देकर और राज्य के सतत औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण का समर्थन करके ये पहल मेक इन इंडिया मिशन के साथ संरेखित है और छत्तीसगढ़ को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए विश्व की केंद्र के रूप में स्थापित करती है। हम विनम्रतापूर्वक इस परिवर्तनकारी परियोजना को सरकार के साकार करने के लिए आपके मार्गदर्शन और अनुमोदन की अपील करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रगति और अवसरों का एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरेगा। हमारे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन रहे थे जहां पर जो है छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में खास तौर पर जो सेमीकंडक्टर कारखाना है उसका भूमि पूजन हो चुका है और उसकी रूपरेखा के बारे में भी अब चर्चा की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और दमोह की बात करेंगे। दमोह के मिशन अस्पताल में ऑपरेशन कर 7 लोगों की जान लेने वाले नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन कैम को लेकर कई बड़े खुलासे और कनेक्शन सामने आए हैं। नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन कैम कंसल्टेंसी के जरिए 5 साल से नौकरी की जुगाड़ में था। उसने इंदौर की कंसल्टेंसी को नौकरी के लिए रिज्यूम भेजा था। वो रिज्यूम की कॉपी अब न्यूज 18 के पास है, जिसमें नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन कैम ने खुद को यूके का निवासी बताया था। रिज्यूम में लंदन समेत कई जगहों से डिग्री लेने का जिक्र भी है। साथ ही उसने रिज्यूम में बताया कि 2013 से 2017 तक वो जर्मनी के अस्पताल में तैनात था। इन सब के बीच अब नरेंद्र यादव उर्फ डॉक्टर कैम का जबलपुर कनेक्शन भी सामने आया है। जबलपुर के निजी अस्पताल में खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर उसने नौकरी की थी और कई मरीजों का इलाज भी किया था। तो कई खुलासे हो रहे हैं। तुषार संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जितने खुलासे हो रहे हैं और क्या नई बातें सामने आ रही हैं। तुषार, और क्या कुछ सामने आया है? रिज्यूम में बहुत कुछ पता चल रहा है और न्यूज 18 के पास, हमारे पास एमपी छत्तीसगढ़ के पास सबसे पहले रिज्यूम हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केन को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। एन जॉन केन 2013 से 2017 तक नौकरी की तलाश में था। उसने इंदौर में कई जगहों पर नौकरी के लिए बात की थी। वहीं नवंबर 2023 में कंसल्टेंसी कंपनी को अपना रिज्यूम भी भेजा था, जिसमें उसने 2013 से 2017 तक जर्मनी में डॉक्टर करने की बात भी कही थी। कई अलग अलग देशों की डिग्रियाँ और अलग अलग देशों में उसने काम करने का अनुभव भी अपने रिज्यूम में बताया था। हालांकि कंसल्टेंसी ने जब इस पूरे रिज्यूम की जाँच की तो उन्हें काफ़ी अलग अलग जगहों से कोई जानकारी एकत्रित की। उसमें सामने आया कि इस तरह के नाम का कोई डॉक्टर नहीं है। उन्होंने जब इस बारे में गूगल पर भी सर्च किया और बुरहानपुर के एक हॉस्पिटल जिसका उल्लेख किया गया था उस पर भी बात की तो वहाँ इस तरह के कोई भी व्यक्ति द्वारा काम नहीं करने की बात सामने आई थी। कंसल्टेंसी कंपनी द्वारा इस बारे में जब बात की गई तो उन्होंने बताया था कि हमारे द्वारा इसके रिज्यूम पर शक होने पर इसे नौकरी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके द्वारा हमें रिज्यूम भेजा गया था और लगातार नौकरी की मांग की जा रही थी। हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट एक बड़ा महत्वपूर्ण
पद होता है, महत्वपूर्ण डॉक्टर होता है, जिसके बारे में पहले सर्च की जाती है, उसके बाद ही डॉक्टरों को जानकारी दी जाती है, अस्पतालों को जानकारी दी जाती है कि इस डॉक्टर की अगर ज़रूरत है तो इन्हें रखा जाए। हालांकि शिलान्यास किए हैं और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, आरंग के विधायक खुशवंत साहिब जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह जी और पॉलीमेटेक कंपनी के MD श्री ईश्वरराव नंदन जी, सभी उद्योगपतिगण, सभी अधिकारीगण और पॉलीमेटेक के सभी सदस्यगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, मैं आज की इस अवसर पर सबसे पहले आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं पॉलीमेटेक कंपनी को, उनके MD ईश्वरराव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स का उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे प्रदेश को चुना, छत्तीसगढ़ को चुना। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और आज के इस अवसर पर हम नई उद्योग नीति लॉन्च करने के लिए हमारे उद्योग मंत्री, हमारे उद्योग सचिव यहाँ पर रजत कुमार हैं, उनकी पूरी टीम को भी बधाई शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है और जिससे हमारे उद्यमी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। और हमको ख्याल है कि दिल्ली के अंदर में हम लोग पहला इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम किए थे, उसी में ईश्वरराव नंदन जी आए थे और हम लोग का नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो सुने समझे और प्रभावित हुए और इतने कम समय में उन्होंने निर्णय लिया छत्तीसगढ़ की धरती में ये उद्योग लगाने के लिए। उनका पुनः हम धन्यवाद करना चाहेंगे और बहुत जल्दी इस कंपनी को जमीन भी उपलब्ध कराने के लिए और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए NRDA को भी, उद्योग विभाग को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इस उद्योग के स्थापित होने से यहाँ पर निवेश तो आ ही रहा है, लेकिन हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। आज हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत के दिन में ही कुछ बेटियों को नियुक्ति पत्र दिया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में और आगे कंपनी अपना गतिविधि बढ़ाएगी, इसलिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश का और उन्होंने अनाउंस किया है, उसके लिए फिर से बधाई। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए निश्चित रूप से इस उद्योग के स्थापित होने से छत्तीसगढ़ का विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा, हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। मैं फिर से एक बार पॉलीमेटेक कंपनी को, ईश्वरराव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और सरकार की तरफ से आगे भी जो भी सहयोग होगा सरकार उनको सहयोग उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके पश्चात हम निवेदन करेंगे श्री ईश्वरराव नंदन जी से एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करेंगे मंचस्थ आप सभी के बीच। और पुनः धन्यवाद इस बेहद प्यारे जुड़ाव के लिए। भूमि पूजन आधारशिला स्थापन हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित हैं श्री विश्वेश कुमार जी, MD CSIDC। आप सभी को नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुंदर साई जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी ने यह उपलब्धि हासिल की है। धन्यवाद सर। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे
माननीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग रतनलाल देवांगन जी का एवं हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का, यहाँ पर उपस्थित हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष CSIDC श्री राधिका पुवाल जी का एवं विधायक आनंद सिंह साहब जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को प्राप्त किया। धन्यवाद सर। और यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव महोदय एवं सभी वरिष्ठ सचिव महोदय का भी बहुत बहुत आभार, जिनके मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम संभव हो सका है। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। साथ ही यहाँ पे मीडिया पर भी विभाग के हमारे सभी साथी और अंत में तो नए रायपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की नई उड़ान की ये तस्वीर है और भूमि पूजन भी इसका हो चुका है। सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि कई अवसर लेकर आ रहा है, अवसर रोजगार के अवसर इससे मिलने वाले हैं, छत्तीसगढ़ को नई उड़ान इससे मिलने वाली है और कई मायनों में ये खास माना जा रहा है। तो भारत का ये पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा जो कि इतना बड़ा होगा। पहली गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर कारखाने की आधारशिला रख दी गई है। वीडियो प्लीज।